یاد ماضی میں خوش آمدید. ہندسوں کے آر پار بائی فاطمہ رحمان، ایپیسوڈ 13 جو کہ ہے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیسے بچاتی ہے نافع کو ناز اور ان کا مشن کہاں تک پہنچا ہے اور کیا کمال کرتے ہیں اس میں یاسین انکل. آئیے بڑھتے ہیں ناول کی طرف. ناز کو تو سبق سکھانا ہی چاہیے ہے نا. اور کاشف مسکرایا اور کہنے لگا ہاں کیوں نہیں. اچھا یار پھر کوئی انٹرنیٹ والا موبائل ہی دے دو مجھے، میں نا اس کی لوکیشن نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. اور کاشف کے کہنے پر اس کے ہاتھ کھول دیے گئے، البتہ باقی دو ساتھی اسے انٹرنیٹ دینے کے حق میں نہیں تھے. کاشف کی ایک گھوری پر انہوں نے اسے بغیر سم کے ایک ٹیب پکڑا دیا. نافع نے ٹیب گھٹنوں پر رکھا اور انٹرنیٹ پر ایک ویب پیج کھولا، کچھ نمبرز لکھے اور جب ہی کاشف کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. دوسری جانب ماموں کا لیپ ٹاپ استعمال کرتی ناز نے ٹیب ایکسس کر لیا تھا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ لبوں پہ رینگ گئی. اب آیا نا اون پہاڑ تلے، ماموں نے کہا تھا، اور اب وہ اسکرین پر کھلے نقشے میں نافع کی لوکیشن دیکھ رہے تھے. رہائشی علاقے میں ایک گھر کے تہ خانے میں وہ بند تھا. آگے کا کام نا اب آپ کا ہے. ناز کے کہنے پر ماموں نے ایک دو جگہ پھر کالز کرنی شروع کر دی اور واپس تہ خانے میں جس کے ایک کمرے میں نافع کو رکھا گیا تھا، کاشف نے اس سے فٹافٹ ٹیب جھپٹ لیا اور گریبان پکڑ لیا، کیونکہ ٹیب پر تو ان کی لوکیشن ایک دوسری جگہ پہنچائی گئی تھی. اور اس سے کہنے لگا کہ کیا حرکت تھی یہ بتاؤ، تم نے کیا کیا ہے. نافع کا گریبان پکڑے وہ اسے جھٹکے دے رہا تھا. ارے میں ناز کو ہی تو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ نہیں ملی مجھے. ارے ٹرسٹ کرو نا مجھ پہ. کاشف جو اسے گریبان سے ذرا اٹھا چکا تھا ایک جھٹکے سے واپس کرسی پہ پٹکا اور کہا کہ باندھ دو اسے. اور باقی دو آدمیوں نے اسے باندھ دیا اور کاشف نے بالوں سے پکڑ کر اس کی گردن کو جھٹکے دیے، لیکن وہ تو ٹس سے مس نہ ہوا. آنکھوں میں آنسو لیے بس اسے دیکھتا رہا اور ایک سناٹے دار تھپڑ مار کر کاشف باہر کی طرف چلنے لگا. ارے یار رک جانا میرے بھائی، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے. ہر نافع کی منمناہٹ کو خاطر میں نہ لایا گیا اور کاشف نے جاتے وقت لائٹس بجھا دی. چول نہ ہو تو. گھپ اندھیرے میں خالی دیواروں سے آواز ٹکرا کر اس تک واپس آئی تھی اور گال تھپڑ کے باعث سلگ رہا تھا. نافع کو نا اب تھوڑی دیر سو ہی جانا چاہیے. کرسی کے ساتھ بندے ہی آنکھیں موندے وہ اونگنے لگا تھا اور سین ہوا ختم. بھاگم بھاگ کھانے کی میز سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا اور پہلی فرصت میں حمزہ کو ویڈیو کال کی. لڑکے سے کچھ اگلوا لیا تم لوگوں نے؟ نہیں بہت ڈھیٹ ہے وہ، مجھے یہاں احمد ٹاورز پر آنا پڑا تھا اور میں ڈیٹا کی جگہ بدل رہا ہوں. حمزہ اگر اس میں سے ایک بھی بات باہر نکلی تو وہ آخری دن ہوگا تمہارا. یس باس بخوبی جانتا ہوں، میرے آدمیوں نے اسے مارا بھی ہے اور لالچ بھی دیا مگر نہیں بتایا اس نے. ابھی تو وہ اسے میرے گھر میں ہی بند چھوڑ آئے ہیں اور اس نے کہا تھا کہ اندھیرے سے ڈرتا ہے اور وہ تو اسے اندھیرے میں ہی بند چھوڑ آئے ہیں. 2-3 گھنٹے وہاں پہ بند رہے گا نا تو ضرور اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا. دیکھو یہ ناز کی چال بھی ہو سکتی ہے، بہت چالاک ہے وہ. جس طرح وہ چشمے میں کیمرہ لگا کر لے گیا نا، وہ اب بھی کچھ سوچ رہے ہوں گے اور کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. حمزہ. یس باس. حمزہ سا جلدی جلدی سب ریکارڈ کاغذ پر پرنٹ کر رہا تھا اور منصور حیات خان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا. اچھا یہ بتاؤ کہ ناز کے گھر میں اور کون کون ہے؟ ماں باپ، اور باپ کو چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے، اس کے علاوہ چھوٹا بھائی ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار بھی آیا ہوا تھا، وہ چلا گیا شاید. کرتا کیا ہے وہ رشتہ دار؟ اور حمزہ نے ذہن پر زور ڈالا اور کہا کہ حوالدار ہے آزاد کشمیر میں. تو بے ضرر ہی ہوا، یعنی کہ کوئی
نقصان نہیں پہنچا سکتا ہمیں. اچھا لڑکے سے کیسے اگلواؤ گے؟ اس کے باپ کو دھمکائیں گے. اگر کچھ گھنٹوں تک اس نے کچھ نہ بتایا تو اسے صرف اسے ہی پتا ہے کہ ناز کہاں ہے، کیونکہ ناز تب سے گھر نہیں گئی اور گھر والے جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے. ہاں تو ٹھیک ہے نا، لڑکا چپ رہا تو بھی اس کا چھوٹا بھائی بھی تو ہے، وہ ضرور سمجھ جائے گا. اور حیات کے انداز میں قدرے ٹھہراؤ تھا، وہ پہلے کی نسبت ہلکا پھلکا تھا. باس ویسے ناز کا کرنا کیا ہے؟ مطلب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ناز کیا ہے اور تمہارے پاس لے بھی آتے ہیں تو پھر اسے کیا سزا دینی ہے؟ اور حمزہ نے لمحے بھر کو سر اٹھا کر منصور حیات خان کا چہرہ دیکھا اور وہ کہنے لگا کہ وقت ہی بتائے گا حمزہ. جی. وہ پہلے کی طرح سسٹم سے سر کھپائی کرنے لگا اور اس نے مزید سوال نہیں کیا، اور حیات نے قدر مطمئن ہو کر ویڈیو کال بند کر دی اور سین ہوا ختم. جب پرندے گھروں کو لوٹ رہے تھے اور شام کے دھندلکے پھیل رہے تھے، اسی بیچ شہر کے کنارے پر بنی نئی کالونی کے درمیانے سے گھر میں، جہاں سخت پہرا تھا، کیمرے تھے اور گھر میں اسلحے سے لیس آدمی کھڑے تھے، اس سے کچھ دور ایک گاڑی رکی. دروازے پر کھڑے آدمی کی نظروں میں آئے بغیر عام سے حوالدار یاسین فرید نے بیک سیٹ پر بیٹھے دونوں ساتھیوں کو ایک نظر بیک ویو مرر میں دیکھا. جبکہ کان میں لگے ایئر پیس میں بولا کہ باہر 2 گارڈز ہیں. اور مقبول ہوٹل کے تہہ خانے میں سر پر ہیڈ فون لگائے بالوں کو کس کر بن میں باندھے ناز نے سر ہلایا اور کہا اچھا 2 منٹ رکیں آپ لوگ، چاروں طرف کیمرے میں ان کا بندوبست کر لوں. نافع نے اسے صرف اپنی لوکیشن ہی نہیں دی تھی بلکہ انٹرنیٹ سے جڑے ہونے کے باعث اس کے پاس گھر میں موجود ہر انٹرنیٹ اور بجلی سے جڑی چیز کا کنٹرول بھی دیا تھا. اور بامشکل 3-4 منٹ میں اس نے گھر کی 4 دیواری پر لگے کیمرے روک کر 1 گھنٹے پہلے کی کلپ چلا دی. سیکیورٹی آفیسرز اس بات سے لا علم تھے کہ ان کے کیمروں سے چھیڑ چھاڑ کی ہے. پکوڑے اور چائے نوش کرنے میں وہ لوگ مصروف تھے، جبکہ ناز کے مانیٹر پر CCTV کیمراز کی اصلی فوٹیج چل رہی تھی. اسے سب صاف صاف نظر آ رہا تھا جو اس وقت ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ بیٹھے گارڈز کو 1 گھنٹے پہلے کا کلپ نظر آ رہا تھا. اور پھر گاڑی سست روی سے چلتی گھر کے پچھلے حصے میں جا کر رک گئی. ایک کے پیچھے ایک تینوں خاردار تارے احتیاط سے کاٹ کر دیوار پر سے پھلانگ گئے اور ایک ساتھی کو وہیں چھوڑ کر یاسین اور اس کا ساتھی جمشید آگے بڑھ گئے. وہ چھٹی پر آئے ہوئے تھے اور دونوں ہی اور یاسین کے کہنے پر تبھی نافع کو بازیاب کروانے کے لیے وہ مدد کے لیے آ گئے تھے. عام سا حوالدار یاسین فرید ان کا باس تھا. پائپ پر چڑھ کر وہ دوسری منزل پر پہنچ گئے. چلنا شروع کریں. ماموں نے ایئر پیس میں چپس کا پیکٹ کھلنے کی آواز سنی اور پھر وہاں سے انسٹرکشن آئی کہ دائیں ہاتھ مڑ جائیں. مانیٹر پر ان تینوں کی لوکیشن بھی وہ دیکھ سکتی تھی. ابھی ماموں ایک دروازہ کھولنے والے تھے کہ ناز نے کہا کہ رکیں، اور ناز کے کہنے پر وہ جہاں تھے وہیں رک گئے. اور پھر اس نے کہا کہ کوئی آ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں نا کہ کیا کرنا ہے. پہلے راہداری خالی ہی تھی، یہ پتہ نہیں کہاں سے اگایا ہے. اس کے بعد وہ دونوں ٹیرس کے دروازے پر ہی کھڑے رہے اور پھر انہیں انسٹرکشن دی گئی کہ سیڑھیاں اتر کر بائیں ہاتھ راہداری اور 6 قدم. اور جیسے وہ کنٹرول روم کے پاس پہنچے تو ناز نے کہا کہ ماموں یہ کنٹرول روم ہے اور یہاں سے بھاگیں. ناز کی آواز کے ساتھ چلتے وہ سیڑھیوں کے نیچے بنی تھوڑی سی جگہ میں چھپ گئے اور پھر کہنے لگے کہ ناز بھی سیریس. وہ اسے وقت کی نزاکت سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. اچھا نہ ہو جاتا ہے بس. ناز کی منمناہٹ گونجی اور چپسوں کی کرچ کرچ جاری تھی. ناز یہ چپس رکھو اور دھیان سے دیکھو.
मामू नताशा बगैर स्नैक्स काम नहीं कर सकती और यासीन गहरी सांस भरकर रह गया। और देखो, अगर नताशा की जरा सी कोताही हुई ना तो हम सब मारे जाएंगे और जिंदा तुम्हें भी वो नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इससे पहले ना तुम्हारी माँ हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसलिए सोच समझ कर बोलो। ओके बॉस, मरना कैंसिल नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अभी यहीं पे रुकें, 2 आदमी आ रहे हैं। तो क्या उन्हें भी बेहोश कर दें जैसे उन्होंने पहले आते एक शख्स को किया था जब ऊपर कोई आ गया था और उसने कहा था कि मामू आपको पता है कि आपने क्या करना है। जमशेद ने कहा था और नाज ने सुन लिया था। मामू, ये जो आपके साथ फन्ने खान है ना, इसे रोके मरवाएगा ये। और यासीन ने दिल में 1000 बार शुक्र अदा किया कि एयरपीस की आवाज सिर्फ उन तक ही थी। और यासीन ने जमशेद की तरफ मुड़कर कहा कि देखो, ये गुजर जाएं तो ही हम आगे जाएंगे। ये हुई ना समझदार वाली बात मामू। नाज की शाबाशी जारी थी। अच्छा, अब निकलें यहां से, दाएं हाथ चलना शुरू कर दें और सीधा जाते जाएं, ठीक है? बस 2 कदम। और सामने फायर प्लेस नजर आ रही है आप लोगों को? बस वहीं जाना है आपने और नाफे उसके पीछे है, दरवाजा जाके ढूंढ लें। लेकिन यहां तो खाली दीवार लग रही है, दरवाजा तो नहीं है। फायर प्लेस के सामने जो मैट है ना, उसके नीचे सीढ़ियां होंगी शायद। और जमशेद दरवाजे पे जाके रुक गया और यासीन ने कारपेट उठाया तो लकड़ी का ढक्कन था वहां। उसे उठाया तो देखा कि नीचे सीढ़ियां थी। जमशेद को नीचे उतरने का इशारा करके यासीन नीचे उतर गया और नीचे वाकई तारीकी थी। आंखें खोले अंधेरे में देखने के काबिल हो रही थी और कोने में पड़ी कुर्सी पर उसे कोई बंधा हुआ नजर आया। दीवार पर छोटा सा रोशनदान था और शाम होने के बायस अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। यासीन को वो बेहोश लगा था और उसने नाफे का गाल थपथपाया तो उसने फौरन आंखें खोली, फिर जुमाई ली और कहा, मामू जान आप आ गए। नाफे ने बोलना शुरू कर दिया। आपको पता है इन्होंने मुझे मारा है और ऐनक भी तोड़ दी, इतना नुकसान हुआ है मेरा। लो जी, यहां भी हो गया शुरू। नाज ने उकता कर कहा और उसके चिप्स खत्म हो चुके थे और मामू को जवाब दिए बगैर नाफे की रस्सियां खोल रहे थे। जरा नाज अपने लक्षण कंट्रोल कर लेती ना तो ये दिन तो ना देखना पड़ता हमें। और दूसरी तरफ नाज चीखते हुए कहने लगी कि मामू ये क्या बकवास कर रहा है। और यासीन ने भी बेतासुर कहा कि करने दो, सदमे में है बेचारा। और नाफे की रस्सियां खुल गईं और वह यासीन से लिपट गया। हे मामू जान, आप इतनी देर से क्यों आए? मुझे तो बहुत डर लग रहा था अंधेरे से। जल्दी चलें इस अंधेरे से। आंखों में आंसू थे और गले से आवाज भी सही से निकल नहीं रही थे। अब तुम छोड़ोगे मुझे तो जाएंगे ना? और यासीन ने उसका कंधा थपक कर उसे अलग किया और आस्तीन से आंखें और नाक पूंछ कर सर हिलाता अच्छे बच्चों की तरह यासीन के पीछे चलने लगा। जब ही बाहर से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। मामू जान मुझे डर लग रहा है। नाफे ने यासीन का हाथ पकड़ लिया और मकबूल होटल के तय खाने में उसने दरवाजा बंद होने की आवाज भी सुनी थी। शट अप नाफे, मामू आप बताएं कि क्या हुआ है? नास ने पूछा था और किसी ने जवाब नहीं दिया था और सीन हुआ खत्म। शाम का वक्त था। वो चमन में सफेद गेंद की कुर्सियों पर महवे आराम थे और जाने कब से माँ उसे इधर उधर की बातें सुना रही थी और वह दरमियान में 1-2 बार सर भी हिला देता। मंसूर हयात खान की मां कहने लगी कि कभी गौर किया है सारे दरख्तों के पत्ते एक से नहीं हिलते, एक साथ नहीं हिलते, बल्कि कुछ झोंकों के साथ सिर्फ सामने वाले ही हिलते हैं। तो कभी सिर्फ इस तरफ पत्ते हिलते हैं। देखो तो हवा भी कितनी फर्माबरदार है ना। जिन पत्तों को हिलाने का हुक्म होता है सिर्फ उन्हें ही हिलाती है और सबको नहीं हिलाती। कितनी ताबेदार हुई ना ये हवा।
मोर अब छोड़ ना इस मोए को, कुछ कह रही हूं मैं तुझसे। और मंसूर उनकी तरफ देखे बगैर बोला कि कुछ कहा आपने मुझसे? और वो मजीद नाराज हो गई। हाँ तो क्या खुद से बातें कर रही हूं मैं यहाँ पे बैठ के? बहुत थक गया हूं मैं, कुछ देर तो आराम करने दें। बेजारियत और उकताहट को उसने छुपाने की कोशिश की। और कल सुबह ना मेरी वापसी भी है। इतनी जल्दी? हाँ, कुछ मुसीबतें आन पड़ी हैं, उनसे निकल जाऊं ना, फिर ज्यादा दिनों के लिए रहने आऊंगा। माँ तो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो नजरअंदाज करके उठ गया और सीन हुआ खत्म। दूसरी तरफ दिखाया जाता है सीन स्टार्ट होता है मामू, नाफे और जमशेद से, और दूसरी तरफ बात कर रही होती है नाज और उन्हें बताती है, मामू राहदारी में ना कुछ लोग हैं। अब नाज स्क्रीन पर देखती पूछ रही थी, हारिस को कहो कि यहां आए रोशनदान के बाहर। रोशनदान किस तरफ है? दाखिली दरवाजे के सामने। और तुम तो बच्चे हाथ छोड़ दो मेरा। नाफे जिसने अब तक उनका हाथ पकड़ा हुआ था करके हाथ छोड़ दिया। चश्मा पकड़ाना जरा, यासीन ने कुर्सी पे खड़े होते हुए कहा, और नाफे ने एहतियात से कुचला हुआ चश्मा यासीन को पकड़ाया। यासीन ने चश्मे के मजीद 2 टुकड़े किए। अब बेसमेंट में अंधेरा फैल रहा था और चश्मे की एक टांग से यासीन ने जाली के पेच खोल दिए और दूसरी तरफ नाज ने हारिस को, जो दीवार के पास ही खड़ा था, उनकी मदद के लिए भेजा। और फिर नाफे ने बेसाख्ता पूछ लिया कि आप इसमें से कैसे निकलेंगे? पहले तो तुम्हारे 2 हिस्से करके निकालूंगा ना, फिर खुद दरवाजे से आऊंगा। और एक झटके से यासीन ने जाली खींचकर आहिस्ता से जमीन पर रखी और कुछ ही देर में हारिस भी आ गया और बगैर कुछ कहे उसने जमीन पर लेटकर हाथ बढ़ाया। आ जाओ, शाबाश। और फिर यासीन उतर आया और नाफे कुर्सी पे खड़ा सचमुच का बच्चा महसूस कर रहा था और यासीन ने उसकी आंखों में सवाल पढ़ लिया कि अगर मैं निकल जाऊंगा तो आपका क्या होगा? और जवाबन उसने कहा कि तुम मेरी फिक्र मत करो। नाफे ने हारिस के हाथ पकड़े और यासीन ने उसे सहारा देकर बाहर निकाल दिया। हारिस और नाफे के जाने के बाद यासीन ने नाज से पूछा, अच्छा बताओ कि जमशेद कहाँ है? पता नहीं, उनका एयरपीस बंद है और लोकेशन आपके करीब ही है। कितना दूर? शायद एक कमरा छोड़कर ही। अच्छा, और बाहर इस वक्त कितने लोग हैं? राहदारी में 1 है और लाउंज में 2 हैं, नाज ने उसे बताया। सही। अच्छा, ये जो भी भेजें अगर ये गाड़ी में बैठ जाएं तो बताना। और फिर इशारा समझते हुए नाज ने सर हिलाया। चंद मिनट बाद वो बोली तो उसने कहा कि हाँ वो पहुंच गए हैं। नाजो, याद है ना कि... और यासीन ने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। यही ना कि उल्लू रात में निकलते हैं। इस एक मुस्कुराहट के साथ उसने जुमला मुकम्मल किया था और तय खाने से बाहर एक एक करके तमाम कमरों की बत्तियां गुल होती गईं और नाज पुरसुकून सी कुर्सी पर झूलने लगी। जब कंट्रोल रूम में बत्तियां बुझी तो सबका माथा ठनका और एक ने पूछा कि क्या लाइट चली गई है? अरे फिक्र ना करो, अभी जनरेटर ऑन हो जाएगा। लेकिन वो इंतजार करते रह गया और जनरेटर ऑन नहीं हुआ। जब भी किसी ने जोर जोर से बेसमेंट का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और लाउंज में बैठे काशिफ ने बिना सोचे समझे दरवाजा खोला, क्योंकि उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि नाफे खुद रस्सियां खोल सकता है। उसने लॉक खोला और दरवाजा दूसरी जानिब धड़ से खोला। वो संभला भी ना था कि पसलियों में मुक्कों की बरसात से वो तो दोहरा ही हो गया। गुप अंधेरे में यासीन उसे डॉच करके बाहर की जानिब भाग गया था और फिर उन्होंने कहा कि नाज मुझे रास्ता बताओ। ओह हाँ,
नाज जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कुर्सी पे झूल रही थी सीधी होकर बैठी। हाँ लेफ्ट हो जाएं आप। एक मिनट रुके, वहां से कोई आ रहा है। और यासीन ओठ में इंतजार करने लगा, लेकिन सामने वाला भी बड़े मोहतात कदम उठा रहा था। अरे ये तो जमशेद अंकल है मामू, नाज चहकी। और फिर बड़े ही पस्त आवाज में यासीन ने उससे कहा कि कहां थे तुम। और वो नाज की रहनुमाई में फिर ऊपर आ गए। एयर पीस गिर गया था और फिर वो लोग आ गए और मुझे दरवाजा बंद करना पड़ा। और फिर अंधेरे में टामक टूइयां करता रह गया मैं तो। और फिर इसके बाद पाइप से वो नीचे उतर गए। हुआ यह था कि कंट्रोल रूम का जो कंट्रोल था वो शायद नाज के पास आ चुका था। जैसे उसने कैमरों पे फुटेज चेंज कर दिया था, ऐसे ही उसने लाइट भी बंद कर दी थी। और जैसा कि उसने कहा कि रात को उल्लू निकलते हैं, जब अंधेरा होगा तो उनके लिए फर्रार का रास्ता जो है वो आसान हो जाएगा। और अब जैसे ही मामू गाड़ी में बैठे तो कहने लगे कि बिजली नाज। और पिछली सीट पर बैठकर यासीन ने कहा, और हारिस ने गाड़ी आगे बढ़ा ली और नाफे एक बार फिर यासीन के साथ लिपट गया। और वो कहने लगे कि इतने चिपकू क्यों हो तुम। वैसे मामू जान बहुत मजा आया मुझे तो इस एडवेंचर का। नाफे चहक चहक कर उन तीनों को आज की रुदात सुना रहा था, अलबत्ता तीनों चुप थे। और फिर नाफे बच्चों की सी खुशी में बोला कि आप तीनों नाफे को छुड़ाने आए थे क्या? सर, हारिस ने यासीन को मुखातिब किया, हमें होटल छोड़कर तुम दोनों चले जाओ, बाकी बात बाद में करेंगे। यासीन ने इससे पहले कि कुछ कहता उसे कह दिया और सारे रास्ते फिर नाफी ही चहकता रहा और बाकी तीनों तो होंठ सिए उसे सुनते रहे। हमजा के घर में किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आम सा हवालदार यासीन फरीद, जिसे वो बेजरर से समझ रहे थे, दूध में से मक्खी की तरह नाफे को निकाल कर ले जाएगा। बज़ाहिर वो तो आज़ाद कश्मीर में हवालदार था, और एक ऐसा हवालदार जो ISI की तरफ से वहां के लोगों और फौज पे नजर रखने के लिए भेजा गया था। कुछ अरसा पहले ही आज़ाद कश्मीर में रॉ का एजेंट पकड़ा गया था और ऐसी वारदातों की रोकथाम के लिए यासीन फरीद को हवालदार बनाकर भेजा गया था। बाजू में गोली लगने की वजह से उसे कुछ अरसा तो आराम करना पड़ा और आजकल वो छुट्टियों पर अपनी बहन के घर आया था और नाज उसकी भांजी थी, जिसे हवालदार ने चंद साल पहले ही हैकिंग सिखाई थी। मंसूर हयात खान ने उसे नजरअंदाज करके जो गलती की थी उसका खमियाजा उसे ताहयात भरना था, और बहुत जल्द। नाफे ने वापस आते ही मकबूल बेग को जोर से गले लगाया और कहने लगा, बड़ा मिस किया मैंने आपको अब्बू। और उसकी आंखों में बेपनाह प्यार था और कहने लगे, अभी तो सुबह इकट्ठे हमने नाश्ता किया था। अरे क्या बात करते हैं, पूरे 8 घंटे से मैंने नहीं देखा आपको। नाफे तो उदास ही हो गया था और उनके रुमाल से नाक पोंछ कर वह हट गया। वो नीचे आया तो नाज चिप्स का नया पैकेट खोल रही थी। तो कैसा रहा तुम्हारा पहला एडवेंचर? क्या बताऊं यार, इतना मजा आया। ऐसे 1-2 थप्पड़ भी मारे उन्होंने, मगर जिंदगी में पहली बार अगवा किया गया मुझे। कितना कूल था यार। नाफी ने गौर नहीं किया था कि नाज उसकी कुर्सी पर बैठी और खुद ही प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन यार मेरा चश्मा तो टूट गया ना, अब क्या करूं इसका? जब मैं कोई बैंक लूट लूंगी ना तो फिर से खरीद लेना जरूर। बगैर शर्मिंदा हुए वो दोनों खिलखिलाकर हंसते गए और मेज पर चौकड़ी मार कर बैठे यासीन की खनकार पर वो मुतवज्जा हुए और कहने लगा, कुछ कहा आपने? नाफे ने पूछा था। नाज, यासीन ने नाफे को नजरअंदाज करते हुए नाज को इशारा किया। हाँ। नाज नाफे की फोम वाली कुर्सी पे बैठी बैठी घूमी और वो स्क्रीन पर जो भी कर रही थी नाफे के सर पर से गुजर रहा था। नाफे ने मामू को देखा और वो अपने मोबाइल पर झुके हुए थे। कोई मुझ बेचारे को बताना चाहेगा कि क्या चल रहा है? नहीं, वो एक साथ बोले और नाफे
रुस गया था, नाफे बोला। अच्छा, वो बैक जबान गोया हुए। और कुछ देर बाद नाज सिस्टम शट डाउन करके रुसे हुए नाफे के साथ जाकर बैठ गई। अरे मुंह तो ठीक करो यार, मंसूर हयात खान को ठिकाने भी तो लगाना है। और मेरा ख्याल है ना कि गुंडे ही बुलवा लेते हैं, नाज ने संजीदगी से पूछा। मेरे पास नंबर नहीं है, तुम्हारे पास है तो बुलवा लो, नाफे तंजिया गोया हुआ। जैसे उन्होंने मुझे उठाया ना, हम भी उसे उठा लेते हैं यार, फिर दवाइयों के असर में ना वो सारे नाकर्ता गुनाह भी मानेगा, देखना तुम। सदके नाज, एक मेज तक तो उठाई नहीं जाती, पूरा मंसूर हयात खान उठाने चली हो तुम। नाफे ने भी भरपूर तंजिया अंदाज में जब कहा तो नाज ने उसका तंज एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया। आज सुबह वो छोटी सी मेज नहीं उठा पाई थी, उसे याद था। नार्को एनालिसिस टेस्ट करके ना इंटरनेट पर डाल देते हैं, कैसा? नीम घुंघराली लटों को कानों के पीछे करते वो अपने दानिशमंदाना ख्याल पर तो उछली थी। मशीन है? क्या मतलब, तुमने बनाई नहीं क्या? वो पूछ रही थी और नाफे ने उसकी अक्ल पर मातम किया। दुनिया में ना ऐसी कोई नार्को एनालिसिस मशीन इजाद नहीं हुई जो किसी सियासतदान से सच उगलवाए। यासीन ने भी लुकमा दिया था। बंदूक निकालो, फिर तो दुनिया का बोझ ही कम हो जरा, नाश जोश जज्बात में बोली। और नाफे ने भी बेसाख्ता कहा कि लड़कियों के जज्बात उनकी अक्ल पर ना पर्दा डाल देते हैं। देखो तो कह कौन रहा है, नाज ने भी तमस्खर उड़ाया। मैं भी 40% लड़की हूं। और नाज उसका मुंह ही देखती रहेगी। और नाज कहने लगी कि हाँ ना, कोई मैथ्स का सवाल हो ना तुम, देखो 2 गोलियां और मंसूर हयात खान खत्म, कैसा? नाफे को नाज का आइडिया पसंद आया और कहने लगा, कमाल भाई। जोर शोर से तायदी अंदाज में सर हिलाते वो यासीन की तरफ मुतवज्जा हुआ। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपके सामने एक एजेंट है जो धरती पर ऐसी सरगर्मियां रोकने के लिए मौजूद है। हाथों में ना चूड़ियां पहनकर बैठे हुए एजेंट जी, नाफे तेवरी चढ़ाकर बोला। नौकरी की ते नखरा की, यासीन ने बात ही खत्म कर दी और नाज के चेहरे पर मायूसी साफ थी। लेकिन हाँ, एक और चीज की जा सकती है। यासीन मामू ने जैसे ही कहा तो वो दोनों उनकी बात की तरफ मुतवज्जा हुए। अब वो क्या चीज थी नहीं बताएगी, क्योंकि सीन हो चुका है खत्म। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मंसूर हयात खान के कानों में ये बात पड़ चुकी है नाफे को हमजा के घर से जिस तरह से जितने स्मार्ट वे में वो लोग निकलवा के ले गए। और इस बात पे तो मंसूर हयात खान को बहुत गुस्सा था। वो भी वापस आ चुका था और अपने घर पर ही था और हमजा उसके सामने ही बैठा था, जिसे वो कह रहा था कि चले जाओ तुम यहां से। और वो कहने लगा कि दरअसल मंसूर वो भी क्या करते, अब देखो मैं भी नहीं था और पता नहीं कैसे उन्हें जगह का पता चला। हमजा मुझे मजबूर मत करो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। लेकिन मंसूर, भाड़ में जाओ तुम। मंसूर ने उतने पर ही इक्तफा न किया, पास पड़ा नाजुक कांच का गुलदान उठाकर पूरी कुव्वत से दे मारा। गुलदान ठीक हमजा के पांव पर लगा और किरचियों में बुत बने घिरे हमजा एड़ियों पर घूमा। अपने पीछे उसने मंसूर की गुसीली आवाज भी सुनी थी जो कह रहा था कि दोबारा मेरे सामने मत आना हमजा, जब तक तुम ये सारा मेस समेट नहीं लेते।
और वो कमजोर दुखते कदम उठाता कमरे में आ गया जहां एक लड़का बैठा तेज तेज लिख रहा था। कितना हुआ है? वो कुर्सी घसीट कर उसके सामने बैठ गया। बस ये थोड़ी सी रह गई है। उसने पास लगे ढेर की तरफ इशारा किया। हमजा उसे टाइप करता देख रहा था, तभी वो कहने लगा, वैसे कौन है ये नताशा? आज से पहले तक तो इसने कभी हम पर हाथ नहीं डाला। चलो डालने की कोशिश की भी तो हम इतने आराम से क्यों बैठे हुए हैं? वो टाइप करने के साथ साथ पटर पटर बोल रहा था और हमजा चुप रहा। भला अपनी गलती अपने मुंह से कौन बताता है? मैंने तो बस इतना ही सुना था कि कोई हैकर है। क्या इससे ज्यादा कोई चक्कर है इसका? वास्ती, अपने काम से काम रखो तुम। वो जरा डपट करके बोला, लेकिन सामने वाला खासा बदतमीज मालूम होता था। उसके तो होंठों पर बड़ी काटदार मुस्कुराहट थी और कहने लगा, अरे यार मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था, बुरा मत मनाना हमजा, लेकिन सच तो ये है कि सारी गलती तुम्हारी है, वरना वो हमारा सिस्टम हैक ही ना कर पाती और ना आज मुझे 300 फाइल्स हाथ से टाइप करनी पड़ती। मंसूर का हुक्म है कि सब कुछ घर पर महफूज किया जाए, समझे तुम? फिर तो ये सरासर तुम्हारी लापरवाही है। मंसूर को नहीं पता, लेकिन मुझे तो पता है ना कि अगर तुम इतनी लापरवाही से रिकॉर्ड ना रखते तो हम आसानी से कॉपी पेस्ट तो कर देते ना सब कुछ यहां से। तुम जानते थे कि मंसूर कंप्यूटर्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता। ज्यादा ही जुबान नहीं निकलने लगी तुम्हारी वास्ते? हमजा पस्त आवाज में गुर्राया था। भूलो मत कि इस नौकरी पर तुम्हें मेरी वजह से रखा गया है। और आप भी याद रखें हमजा भाई कि मैं जानता हूं कि मामला इतना खराब ना होता अगर आप थोड़ी एहतियात दिखाते। आप ही के बंदों की कोताही की वजह से वो लड़का भाग गया। इतनी हसास फाइल्स नताशा के हाथ में सिर्फ आपकी गलती की वजह से। और वो बड़े मजे से बोलता मुस्तकिल मिजाजी से टाइप कर रहा था। अच्छा तो तुम क्या चाहते हो अब मुझसे? ज्यादा तो कुछ नहीं, बस यही कि मुझ पर रोब डालना बंद करें और अगले महीने की सैलरी प्लस बोनस। और वो एक बार फिर से मुस्कुराया था और हमजा फक्त नफरत से उसे देख कर रह गया और कहने लगा कि क्या मुसीबत है, एक जाती नहीं है कि दूसरी आ जाती है। वो ज़ेर लब बुड़बुड़ाया था और हमजा नावाकिफ था बेशुमार मुसीबतें। अदब से हाथ बांधे बाहर उसी का तो इंतजार कर रही थी। सीन हुआ यहाँ पे खत्म। अब कौन सी मुसीबतें उसका इंतजार कर रही हैं जानेंगे हम अगली एपिसोड, जो कि होगी लास्ट एपिसोड। क्या होगा जानेंगे अगले एपिसोड में। लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।